Okay, am I audible? Yes, now you are. And you can see me on the screen. Yes? You all can see me on the screen, Yeah, right? yeah, yeah, perfect. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Actually, please don't unmute Yes, sir. yourself. But please, you will be removed now, okay? Please don't unmute. If you have any queries, put it on the chat box, okay? So how many people are there? Acha, just you start with this and then I'll talk. Okay. Okay, okay. So, welcome you all to the webinar session of AMU History Society on the behalf of AMU History Society Committee. So, actually, today's our guest speaker is Dr. Junaid Ahmad, IES 2019 batch, and thank you, sir. It means a lot for having you, for giving us such a time. So moving further with our webinar, I just tell you all this session will be recorded. So be aware of it. There are certain rules that need to be followed. If you will not follow, you will remove from this webinar. So please don't unmute yourself. Don't turn on your cameras. Make sure that if it is turned on, make sure to turn it off. So today's webinar will be moderated by Sophia. So over to you, Sophia, now. Sophia, please unmute yourself. Sophia. Sophia, you are not audible. Sorry for the disturbance. Am I audible now, Alina? Yes, yes, now. Start. Clearly? Yeah, yeah, fine. Yeah. So, so here we start our session. So here, hard work spotlights the character of people. Some turn up their sleeves, some turn up their nose, and some do not turn up at all. With that event, I would like to begin today's session. Assalamu alaikum and a very good evening to our honorable guest and our lovely audience. I, Sophia Siddiqui, student coordinator, Aligarh Muslim University History Society, am obliged to take up this opportunity to moderate today's session. I Sophia, hope you are doing good, and I just wish that we all get to accustomed to our post-normal world. We all today are congregated here to enlighten ourselves from one and only IAS Junaid Ahmed. Today, our guest speaker will be shedding lights upon the various aspects of civil service examination, for instance, what to prepare, how to prepare, and why to prepare for it. We are elated to have Mr. Junaid Ahmed as our esteemed speaker. Mr. Junaid Ahmed completed his intermediate from Aligarh Muslim University and then went on to pursue his graduation in electronic engineering from Sharjah University. Mr. Junaid Ahmed is well known for his hard work and dedication that he put up in order to fulfill his goal to serve the nation. He got selected in the Indian Revenue Services in the year 2017, but he believed in hard work, never leaving his aim to become an IAS officer, which he did in the year 2018 by getting All India Rank 3. Now, we might be confused that why didn't Mr. Junaid Ahmed further proceed with the Indian Revenue Services? So, in order to answer that, I would like to recapitulate what Mr. Junaid Ahmed commented in his interview in 2019. He said, and I quote, "When I was in IRS, when I was in IRS, I lacked the direct source to serve the people of our country. And I wanted to help people, which I was unable to do in IRS. So I decided to try one more time. Your determination has inspired us and is still on its trajectory to motivate us too. So now I would like to call upon Mr. Junaid Ahmed to address our audience. Over to you, sir. Thank you.
Thank you, Sophia, for this long introduction. Uh, this is the first time. Firstly, एक तो there's a blank screen in front of me, so I don't want to talk to this blank screen. So what you can do is, how many people are there exactly in this meeting? Like 92, it is showing. So some people जो है वो open कर लें अपना video, अगर if the internet permits, at least I can see some faces. और किसी को अगर बात करनी है तो इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग ऑन द चैट बॉक्स या कुछ भी, वो अनम्यूट करके और उसको बोलेगा, तो दैट विल बी बेटर आई थिंक. अलीना, इज इट पॉसिबल कि सम पीपल जो हैं वो अपना वीडियो ओपन कर ले, तो यू कैन आस्क सम. Sure. हाँ. But actually, I thought there will be a disturbance, so I said. But No. Yeah. Ask them to mute their computers or mobile on which they're logged in, and if they want to ask something or say something, then type in the chat box and then unmute. I know they will maintain the decorum. After all, they all are the UPSC aspirants. Okay. Yes. Okay. So this is the first introduction. Sophia has given पूरा सारा डिटेल में. तो this is the first time I'm addressing students from Aligarh Muslim University. मेरा जब when I got selected in Indian Revenue Service, so many people called me कि एक बार अलीगढ़ आके एड्रेस करें स्टूडेंट्स को, and I made plan तब भी, but because of one reason or the other हो नहीं पाया था. And दिस टाइम भी IAS के बाद भी आई ट्राइड कमिंग टू अलीगढ़, लेकिन पता नहीं क्या रीजन था कि हो नहीं पाया. तो अच्छा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एड्रेसिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. सो मेरी जर्नी जो अलीगढ़ की स्टार्ट हुई थी, आई केम इन 2002. बहुत छोटा सा बच्चा था उस टाइम पे, 6th क्लास में आई केम देयर. तो पेरेंट्स का था कि ठीक है अलीगढ़ भेजना है, हॉस्टल लाइफ में रखना है उनको ताकि इंडिपेंडेंट होते हैं, अच्छे से रहते हैं. तो वहाँ पे एग्जाम दिया एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड. इसी में मैं बताऊँ 6th क्लास में दैट वाज द फर्स्ट एग्जाम व्हिच आई गेव अपनी लाइफ में, एंड मेंटो सर्किल का उसमें इंटरव्यू भी होता था उस टाइम पे. मैं गया एंड आई क्लियर दैट एग्जाम, तो बड़ा अच्छा सा लगा था. उसके बाद लाइफ में कभी एग्जाम क्लियर नहीं किया मैंने, कोई भी क्लियर नहीं किया. उसके बाद IAS वाज द ओनली एग्जाम व्हिच आई क्लियर बीच में, बाकी कोई एग्जाम ऐसा नहीं था जो मैं क्लियर करा. तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो कि रहा पूरी एक स्टोरी मेरी. तो 2002 में जब मैं वहाँ पे AMU में आया था, तो मेंटो सर्किल में रहा. उस वक्त बड़ा मेंटो सर्किल को खुराफाती स्कूल बोलते थे. आज भी उसी टाइप से जाना जाता है या चीजें कुछ बेटर हुई है मेंटो सर्किल में? बट ये था, जो भी चीजें थी, एक पूरी लाइफ जो थी AMU की वो बड़ी अच्छी निकली थी. स्टूडेंट लाइफ थी, एंजॉय भी किया, पढ़ाई भी की. एंड देन जब कुछ नहीं हुआ तो फिर सोचा चलो अब कहीं दूसरी जगह ट्राई करते हैं. तो दिस इज हाउ इट हैपेंड. तो 10th क्लास तक मैं मेंटो सर्किल में था 2007 में, एंड देन 2007 के बाद just wait a second, a call is coming, I'll call. I want to ask a question. May I, Alina or Sophia? Please afterwards. Actually, I'm from a law department AMU. Can you guys just provide in the future? Can you just provide the recording, because as you said earlier, because and here the no recording icon is showing. That's why I'm asking. Actually, yeah. It will be uploaded on the YouTube channel of ours, so please. Okay. Okay. Thank you. Okay, तो 2007 में I did my 10th from मेंटो सर्किल, एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने 11th का एग्जाम दिया. तो इट्स ऑल देयर, स्पोकन अबाउट दिस मेनी अ टाइम्स कि वहाँ पे नहीं हुआ था मेरा. तो फिर मेंटो सर्किल से ही मैंने 11th 12th वहाँ पे किया. तो मेंटो सर्किल में उसमें ये था कि जो रह रहा है उस टाइम पे 10th क्लास में, एंड देन उसका +2 में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक प्रोविजन था कि वो मेंटो से ही कंटिन्यू कर सकता था अपनी क्लासेस. तो 11th 12th देन आई डिड फ्रॉम देयर. उसके बाद क्या हुआ कि अब लगा कि इसके बाद कहीं और देखते हैं, चलो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 12th के बाद काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए थे वहाँ पे.
तो एमयू में हुआ नहीं था इंजीनियरिंग में या किसी भी और सब उसमें एग्जाम में। तो फिर आई वेंट टू शारदा यूनिवर्सिटी, वहाँ से इंजीनियरिंग करी एंड इंजीनियरिंग के बाद डिसाइड किया कि चलो अब कुछ करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, प्राइवेट जॉब का था बट वो करने का मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया प्राइवेट जॉब करने का। एंड देन फिर एक बार सोचा कि चलो मास्टर्स करते हैं, कहीं से बाहर से कुछ देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो चीज़ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। देन एक पेरेंट्स का हमेशा से रहा था कि चलो सिविल सर्विसेज करना है, वहाँ पे उसकी तैयारी कर लो, देख लो। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट गिव अ ट्राई इन सिविल सर्विसेज, देखते हैं। तो उसके बाद 2013 के बाद से तैयारी में मैं लग गया था एंड देन आई वेंट टू मुंबई, दिल्ली और काफ़ी जगह पे रहा तैयारी में। एक लंबा पूरा एक पीरियड था तैयारी का। फोर्थ अटेम्प्ट में आई गॉट सेलेक्टेड इन रेवेन्यू सर्विसेज। उस टाइम पे 352 रैंक आई थी। एंड एज सोफिया सेड कि जब मतलब मैं तैयारी करने आया था तो उस टाइम पे एक ही वो था कि आईएएस बनना है। तो आईआरएस नो डाउट इज अ वेरी गुड सर्विस, उस टाइम पे मैं वहाँ पे था। बट जो एक एम था कि आईएएस बनने का, उसके लिए आई अगेन रोट द एग्जाम एंड 2019 वाले बैच में आई गॉट थर्ड रैंक लकीली। तो उसके बाद फिर आईएएस में आया। तो आईएएस और बाकी सर्विसेज में मेन डिफरेंस ना, जैसे मैंने उस पे इंटरव्यू में भी बोला था कि जो डायरेक्ट कनेक्ट विच इज देयर इन आईएएस, इट इज नॉट देयर इन एनी अदर सर्विस, क्योंकि यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू पीपल। उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखना, उनकी सॉल्व करना, वो सारी चीज़ें आप करते हो। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब। आज भी आई एम पोस्टेड इन बलिया अभी, तो यहाँ पे एज जॉइंट मजिस्ट्रेट बलिया हूँ मैं यहाँ पे। तो ग्राउंड से लेके और यू मूव टू द सेक्रेटेरिएट, पॉलिसी मेकिंग तक आप जाते हो। तो देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी वर्क में। एंड उसके बाद आपके जो अपना इंटरेस्ट है आप उसको परस्यू कर सकते हो, लोगों से कनेक्ट रह सकते हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस जॉब के आप बड़े सेटिस्फाइड रहते हो। तो दिस इज समथिंग जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट किया, जिसकी वजह से मैं आईएएस में आया था। और आज वही चीज़ें आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो मोनोलॉग ना मैं बोलता रहूँगा, आप लोग सुनते रहोगे, वो तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, पूरा चल सकता है और मैं वो चीज़ें जहाँ भी जाता हूँ वो करता हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से क्या पूछना चाहते हो एग्जाम से रिलेटेड या मेरी लाइफ से रिलेटेड या कोई भी सारी चीज़ें, तो एक एक करके अगर वो पूछेगा तो वो आई थिंक उस वे में हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को बेटर कर सकते हैं। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, कोई एक इंडिविजुअल ये हैंड रेज करने का, आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन इन गूगल मीट, वो कर सकता है। एंड देन वो अपनी वीडियो स्विच ऑन करके अनम्यूट करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर वो नहीं है तो मैसेज पे भी करके और वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। दो तीन चीज़ें सिंपल सी बिफोर गोइंग ऑन टू दैट थिंग बताना चाहूँगा कि एक तो एक सिविल सर्विसेज का उसमें का व्हाट हाउ एंड व्हाई, वो कुछ इस टाइप से आप लोगों ने एक बनाया था। तो मतलब वो मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि व्हाट इज सिविल सर्विस। अगर मैं बताऊं कि सिविल सर्विस कुछ नहीं है, इट्स अ हाइप दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय पीपल के मतलब इट्स अ वेरी टफ एग्जाम और इसको क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा टैलेंटेड होना चाहिए या इसको क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है। तो आधे लोग जो है उसको उसी वे में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, कि उनको लगता है कि मेरे बस की ये चीज़ नहीं है। तो सिविल सर्विस मेरे हिसाब से इट्स नथिंग बट एन एग्जाम, जो कि और एग्जामों की तरह ही है, बट देयर इज अ हाइप दैट हैज बीन क्रिएटेड कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है, कुछ ही लोग दे सकते हैं। तो दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो मेहनत करता है और सोचता है सिविल सर्वेंट बनने की और वो ऑनेस्टली प्रिपेयर करता है तो वो क्लियर कर सकता है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल आई फील कि मैं खुद हूँ, बिकॉज मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, अगर उसके बाद 12th के बाद या इंजीनियरिंग के बाद मैंने किसी को बोला होता है कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम एंड इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कि नहीं कर पाओगे। बट स्टिल आई प्रिपेयर्ड, आई डिड हार्ड वर्क, ऑनेस्टली मैंने किया तो उसका रिजल्ट भी मिला। तो आई फील इट इज़ नथिंग बट एन एग्जाम, जिसको आप मेहनत करोगे तो आप सेलेक्ट करोगे। दूसरी चीज़, अब
काफी ये जो एक थीम था कि व्हाई दिस एग्जाम, व्हाट व्हाई का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आई एम ऑन दिस चेयर जो कि जॉइंट मजिस्ट्रेट की चेयर है मेरी बलिया में, एंड देन डिफरेंट चेयर पे आईएएस बैठते हैं। तो जो आई सेड ना, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब इज कि व्हाट यू वांट विद द जॉब। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे ना, तो चीजें क्या आती हैं, किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को सोशल स्टेटस चाहिए होता है, किसी को डाइवर्सिटी ऑफ वर्क चाहिए होता है, किसी को पावर अथॉरिटी चाहिए होता है, किसी को कुछ लाइफ में प्रूव करना रहता है, किसी को लोगों की हेल्प करनी होती है। मतलब यू से एनीथिंग एंड इट इज देयर इन दिस जॉब। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इस जॉब में आपको मिलेगी नहीं। आई एम सेइंग इट अ जॉब, बट मोर देन इट इज अ सर्विस जो कि आप करते हो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई सिविल सर्विसेज, तो द सिंपल आंसर इज कि व्हाटएवर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए जॉब, एवरीथिंग इज देयर इन दिस। एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग इज देयर, जो भी आपको चाहिए। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब इज कि हर इंसान अपनी अपनी चीजें उसमें से ढूंढ सकता है। तो ये वाई का जवाब था कि क्यों सिविल सर्विस करना है। एंड द लास्ट थिंग, थर्ड जो आप पूछते हो कि हाउ सिविल सर्विसेज, तो हाउ में जो चीजें हैं वो बेसिक चीजें हैं जो कि हम कोई क्वेश्चन करेगा तो उस पर कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस जो होता है, एनसीईआरटीज होती हैं, बेसिक चीजें होती हैं, सारी चीजें किस तरीके से की जाती हैं। तो ये हाउ का आंसर होता है। तो अब आई वॉन्ट यू पीपल टू आस्क मी कि या यू टेल मी कि मेरे से आप किस तरीके की चीजें पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू बोल सकता हूँ रैंडम चीजों के ऊपर। अब वो आपको इंटरेस्ट आता है नहीं आता है तो उसमें मैटर करता है। तो सोफिया, अलीना और एनीवन जो भी मॉडरेट कर रहा है, तो उसमें यू कैन आस्क पीपल टू अनम्यूट और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन पूछे तो हम You आगे। can unmute yourself like line wise and can ask questions. Sorry. There are many questions in the chat box, so we have to read out for you that. So what you can do is just say the name of that person who has asked the question, and he can open his video and then unmute himself, and then he can ask the question. उसके बाद हम उसके साथ conversation continue करेंगे। Sir, there is Abdullah Khalid who is asking about how to prepare for UPSC CSC for beginners. This is the basic question. Okay, Abdullah, can you please switch on your video? Okay, Abdullah Khalid, unmute yourself. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So अभी क्या कर रहे हो? What you are doing right now? Like सर अभी एमयू से बीए फाइनल ईयर चल रहा है सर। बीए फाइनल ईयर? यस सर। अच्छा, अभी कौन से हॉस्टल में हो? सर मैकडोनल्ड। कौन से? मैकडोनल्ड हॉस्टल। मैकडोनल्ड हॉस्टल, आफ्ताब हॉल में। अच्छा, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज, बताओ मुझे क्या क्वेश्चन है? सर बिगिनिंग में सर हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत से सर। इसके लिए देखो, सर तो बिगिनर्स ना, थिंग इज के सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम, जो कि सारे लोग गलती यहीं पे करते हैं कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम दे जस्ट स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट बुक्स और उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। तो व्हाट यू डू इज यू टेक आउट सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एटलीस्ट 5 साल के, मेंस प्रीलिम्स सबका एग्जाम का जो है सिलेबस निकालो, उनको अच्छे से एनालाइज करो, अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जाम। जब एक बार इस चीज को समझ जाओगे ना, तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में आसानी होगी। तो जो बिगिनर है उसके लिए सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि 1 महीना एटलीस्ट क्या करो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से देखो।
जब वो समझ जाओगे उसके बाद स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज, दे आर द बेसिक बुक्स जो कि आपको पढ़नी रहती है, और उसके बाद यू गो ऑन टू रेफरेंस बुक्स जो एक एक डिफरेंट रेफरेंस बुक्स है। एंड देखो यार एएमयू का ना, पता है मैं जैसे एएमयू में था तो अब आ गया हूँ, वहां पे नहीं हूँ, बट देयर इज एन इमोशनल कनेक्ट जो कि हमेशा रहता है। एंड आई फील ना कि अभी जैसे हम लोग सिलेक्शंस देखते हैं तो एएमयू के सिलेक्शंस बहुत कम है, एंड अराउंड 30,000 32,000 की स्ट्रेंथ है एएमयू की, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। अगर रेशो देखना चाहिए तो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, जामिया या उधर का देखोगे तो मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि व्हाट इज द रीजन कि वहां से क्यों बच्चे आ नहीं पाते हैं एएमयू से सिविल सर्विसेज में। तो दिस इज समथिंग जो कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा उसके ऊपर। आप लोगों ने आज ये वेबिनार रखा, मुझे लग रहा है कि सब लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, बट आई फील कि थोड़ा सा और ज्यादा ना एएमयू में ये चीज स्प्रेड करने की जरूरत है कि आप लोगों में से बहुत लोग सिविल सर्वेंट बन सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो अब्दुल्ला बेसिक थिंग इज कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस को अच्छे से एक महीने एटलीस्ट उनको एनालाइज करो एंड देन स्टार्ट विद बेसिक एनसीईआरटीज, सिर्फ उनको पढ़ो, बाकी इधर उधर कुछ मत देखो। उसके बाद जब आप बेसिक आइडिया हो जाएगा एग्जाम का, देन मूव ऑन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस एग्जाम। ओके ये सर, थैंक यू सर। मेरे पास सब सिलेबस और क्वेश्चन सर दोनों है। ओके ठीक है, उसी को अच्छे से वो देखोगे ना तो दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू सर। एंड सर वन थिंग सर, आई एम आल्सो लिविंग इन बलिया। एक क्वेश्चन करोगे तो पीपल विल गेट टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, है ना, तो रिपीट वो नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू अब्दुल्ला। थैंक यू। Good afternoon, sir. Shall we proceed with our next question, sir? यस So, Anaida is asking, sir, my question is, what was that personality trait of yours which you felt were absolutely consistent with exam and service requirement and brought about a spark in you and made you work hard with passion for consecutive 5 years? Okay, what's your name? Sir, Anaida Yasin. This was the same question I wanted to ask you even. Okay, so you are asking what was that trait? Okay, So Anaida was asking. See, I think देखो क्या होता है कि it took me 4 years to clear this exam, and किसी भी चीज के लिए, I'm not talking about civil services, there are certain traits which are required for doing anything in life. एक बुक है 10,000 hours करके, I've talked about it a lot of times मैंने अपने इंटरव्यूज में और उसमें अगर आप देखोगे ना, व्हाट द ऑथर हैज रिटन इज कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए ना आपको मिनिमम 10,000 आवर्स चाहिए होते हैं। तो मैंने रियलाइज किया ना कि आप अगर देखो कि बेस्ट ऑफ स्टूडेंट जो अच्छा करते हैं तो उन्होंने वो चीज उतनी ज्यादा प्रैक्टिस की होती है कि वो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये टैलेंट वाला चीजें है ना, वो कुछ नहीं होती है, इक्वली टैलेंटेड होते हैं लोग। द ओनली डिफरेंस बिटवीन टू पीपल जो सक्सेसफुल है और अनसक्सेसफुल है इज प्रैक्टिस, कि जो सक्सेसफुल है उसने उस चीज को इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है कि वो सक्सेसफुल हुआ है और दूसरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो 10,000 आवर्स वाली जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ वो यही है। अब मैंने भी ये चीज जब रियलाइज की ना, 4-5 ईयर्स मैंने कंटिन्यूस जो तैयारी करी, एंड एक क्यूमुलेटिव टाइम पीरियड अगर देखूं कि मैंने कितना आवर्स अपने क्लॉक इन किए हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो इट कम्स के उसके अराउंड ही आता है 10,000 आवर्स के। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगी कि व्हेन यू गिव सम टाइम, व्हेन यू प्रैक्टिस समथिंग, प्रैक्टिस, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट। कोई क्रिकेटर है, कोई राइटर है, कोई एक्टर है, कोई भी चीज़ है, उसको टाइम देना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। तो पेशेंस इज समथिंग दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड आपको अगर सक्सेसफुल होना है कहीं पे भी। तो आई फील के उस टाइम पीरियड में जब मैं था तो पेशेंस वो समथिंग, एक ट्रेट ऐसा था जो कि मुझे हेल्प किया उस चीज़ में सक्सेसफुल होने में, क्योंकि फेलियर्स थे लाइफ में, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस फेल हुआ, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू फेल हुआ, तो बहुत सारे अप डाउन आए लाइफ में। लेकिन जब आप डाउन फेज में होते हो ना, हाउ यू होल्ड योरसेल्फ दैट मैटर्स। और उसके बाद जब आप ऊपर आते हो फिर से अप वाले फोर्स में, तो उस टाइम पे आपको जो है
मैटर करता है। तो पेशेंस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज जो ट्रेट होता है वो होता है कि हाउ डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स योर गोल। तो आई हैड दिस थिंग इन लाइफ कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन। लोग ये कहते हैं कि ऑप्शन बी रख लो, ऑप्शन सी रख लो, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, बट मैंने अपने माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं रखा था। तो आई पर्सनली बिलीव कि व्हेनेवर टिल द टाइम यू आर इनटू योर कंफर्ट जोन आप कभी कुछ कर नहीं सकते। until and unless you don't come out of that comfort zone, you don't take that risk, you can't be successful. That's what I have experienced, that's what I have read। किसी की भी अगर आप स्टोरीज पढ़ोगे, कोई भी सक्सेसफुल इंसान है उसने अपने कंफर्ट जोन में रह के उतना अचीव कभी नहीं किया होगा। You need to come out of your comfort zone, you need to take risk if you want to do big in life. So that is something, that trait is very much required। तो ये दो चीजें जो है ना, ये आई थिंक आर इम्पोर्टेंट अगर आपको कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा करना। Of course, sir. Excuse me, sir. Actually, of course, you're right. Whatever you said, I understood that. But my question was a bit diverted. I actually meant ki, when I've heard that you didn't have many options and you were not into studies kind of person. So why you felt that civil services is the only exam? I mean, which personality trait made you feel that civil services is the exam for which you can dedicate your hours, your 10 hours or your years or whatever it is? So what personality trait made you felt connected with civil services? सी दो चीजें हैं। एक तो पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस इज समथिंग विच आई ऑलवेज लाइक। जैसे कि अगर होता है ना कि आई ऑलवेज से कि व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग दैट। इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट के व्हाई यू वांट टू डू दैट, कैसे आपको करना है वो पता चल जाएगा। तो जब मेरे इंजीनियरिंग के बाद मैं बैठा, मैंने अपने बारे में सोचा कि मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। ऐसे ही तो नहीं चल सकता कि ठीक है किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो उसके बाद जॉब कर लो। तो आई क्वेश्चन माई सेल्फ। तो उसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि प्राइवेट जॉब या कोई भी ऐसी चीज ना, इट्स नॉट समथिंग जो मुझे इंटरेस्ट करती है। तो पब्लिक सर्विस इज द ओनली थिंग जो मुझे इंटरेस्ट करती थी। तो वो रीजन था। और दूसरा क्या होता है ना कि आपका ईगो कभी कभी बहुत हर्ट हो जाता है। क्या है कि सेकंड जो मैं बता रहा हूँ मेरा ट्रेड क्या था। I was a very good student up to 6th class, 7th class, 8th class. I was a very good student, 95, 96% वाला ही था मैं। बट बीच में ठीक है कुछ कुछ चीजें हुई उसमें 90 से 60% पे आ गए। तो ग्रेजुएशन में आपने ठीक है कर लिया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, एंड देन यू सेड, एंड देन आप जो है सोचते हो सोफिया कैमरा ऑन कर लेगा? Just a second. And so there are many questions related to the writing skills, like how to prepare for the written exams, what vocabulary they should use. So we just wait for a second. हाँ, तो दिस समथिंग मैं बता रहा था कि हेलो। यस सर। तो क्या होता है ना कभी कभी आपका ईगो हर्ट हो जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ था कि आई थॉट कि यार इतना बुरा तो नहीं हूँ लाइफ में कि कुछ नहीं कर सकूँ। तो आई टुक अ डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टाइप का चैलेंज है। तो ठीक है चलो, सिविल सर्विसेज जो बोला जाता है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, तो इसको ही क्रैक करना है, अब इसको ही करना है। तो वो भी कभी कभी अच्छा होता है। देन यू चैलेंज योरसेल्फ कि ठीक है ये डिफिकल्ट चीज़ है, इसको आप करके दिखाओ, देखो होता है। So that was something that also helped. Thank you, sir.
So I guess this is one last question I'll be choosing. So there is someone who is asking about like what's the question? Sir, blind student UPSC के लिए preparation कैसे करें? CS 80 पेपर बहुत tough होता है उसके लिए qualification. Sorry? Sir, someone is asking about blind how the blind student can prepare for UPSC. Blind students, okay, blind students के लिए क्या रहता है ना कि एक तो प्रिपरेशन में आपके पास ऑडियो बुक्स होती हैं काफी सारी, आप उससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. तो और एग्जाम में क्या होता है ना कि यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ टेकिंग एक राइटर आपको मिल जाता है जो एग्जाम में स्क्राइब आपको लिख देता है एग्जाम को, तो उस चीज़ में हेल्प हो जाती है. तो मेनली मैंने मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन कैसा है. बस 2-3 चीज़ें ही मुझे पता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ ऑडियो बुक्स व्हिच आर अवेलेबल, तो उसको जो है आप एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो चीज़ों को, एंड एग्ज़ाम में आपको बाकी हेल्प मिल जाता है. बाकी प्रोविजंस इतना मुझे आइडिया नहीं है, अगर आप बोलोगे तो मैं उस चीज़ को देख के मैं बता सकता हूँ. Sophia, actually my question was very short. May I ask? Maybe it was skipped. Sure. Thank you. Am I audible, sir? हाँ, बताओ. Thank you. Sir, my name is Ahmed Saeed. Yes. I'm a law student, Aligarh Muslim University. Okay. Actually, I am a judiciary aspirant of Delhi Judicial Services. Okay. And there is a question like everyone is asking how to prepare for UPSC and what are the basics and books and notes and everything. If I ask you whether it is okay to be being a law student and prepare for a judiciary, like in a nutshell, judiciary or UPSC? That's the question. नहीं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैं जामिया में था एंड फिर मुंबई में भी था, तो देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. तो कुछ लोगों को लगता है कि सिविल सर्विसेज जो है वो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एंड कुछ लोगों को लगता है जुडिशरी उनका इंटरेस्ट है. तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेना चाहते हो, लाइफ को किस तरीके से लेके जाना चाहते हो. Many people feel के जुडिशरी में क्योंकि स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है, तो दे फील के वो ऑल इंडिया लेवल का भी जुडिशियल सर्विसेज नहीं है, एंड देन स्टेट में आप रह जाते हो एंड ग्रोथ के चांसेस बहुत कम रहते हैं. तो वो सोचते हैं कि व्हाई नॉट सिविल सर्विसेज जो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और उसमें जो पूरा है ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो इसलिए वो ऑल इंडिया सर्विसेज को चूज करते हैं रेदर देन जुडिशरी. बट पीपल हु वांट टू बी इनटू लॉ और जुडिशरी और उस चीज में रहना चाहते हैं, वो उसी में एग्जाम भी देते हैं. तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है उस चीज में. Actually, Hello, sir. Good evening, sir. Just talk about the interest area. So, like to serve community and to help the needy one. That's the obvious statement given by everyone in the interview of UPSC or in judiciary. नहीं, इंटरेस्ट वही चीज है, सर्विस, यू वांट टू सर्व द पीपल. तो आपको जुडिशरी में भी एरिया है और सिविल सर्विसेज में भी है, दोनों में आप सर्व कर सकते हो लोगों को इक्वली. तो उसमें आपको देखना है कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा कहाँ पे आता है. Okay, thank you, sir. सिंपल बताऊं, दोनों एग्जाम दे दो, बेस्ट चीज है. Hello, sir. Good evening, sir. If I can have 30 seconds ask a more, I question? want to tell you one thing. Sir, I have very important question. May I, sir? Sir, So, sir, is हाँ, important Just question. line guys, please. Alina, I'm very sorry. Just one by Alina, one, please. listen. I'm very sorry. There's an emergency and मुझे जाना पड़ेगा. 1-2 क्वेश्चन और I can take. Yeah, तो sure. Okay, sir, I have a question, sir. Please, sir, last. Sir, please, sir. May Sir, I? one question. Yes, sir. नहीं, Sir, Sir, I have a question. अभी actually Maintain the time. Brother, may I Sir, I have a answer? question. Please, sir, I have a question, sir. Okay, please. Everyone, please mute. Everyone, please mute yourself. Sir, please, one question, sir. नहीं, May not be able How many? को एड्रेस करना चाहता था और मैं आराम से इसको लंबा सेशन करना चाहता था, पर अभी मैम का कॉल आया, डीएम मैम का मेरी, तो वहाँ पे कुछ इमरजेंसी है तो मुझे निकलना Sure, पड़ेगा, sir. है ना. Actually, अब Okay, now- sir, you can go. Yeah, yes, Sir, I have a question, sir.
sir, please. This one is the last question. This could Sir, be the okay. last question. Okay, after that, no questions will be entertained as we have an emergency. Sir, I have a question. मैं फिर से प्लान कर लूंगा अच्छे से टाइम लेके, है ना? उसमें फिर हम लोग कर लेंगे. अभी एक लास्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा था वो पूछ. Sir, it's me, Sahil Khan, sir, Sahil Khan. Sir, please last. Yes, sir, my question. Sir, क्या हम MBBS के बाद UPSC दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं यार. देखो यूपीएससी जो कि एक जनरल एग्जाम है. यू आर अ प्रोफेशनल MBBS किया है, लॉ किया है, तो आप उसके बाद एग्जाम दे सकते हैं. तो और उसमें Yes, sir, but मेडिकल, आपने मेडिकल पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी हैं, तो यू IAS में भी जहाँ पे आपकी नॉलेज जो है ऑब्वियसली काम आएगी वहाँ पे चीजों. आप पॉलिसी मेकिंग में जाओगे. आज कोविड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो मांगता है. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करती है. सर कुछ जगह बताते हैं कि जो MBBS है ये असल में कोर्स है, ग्रेजुएशन नहीं है. UPSC में तो ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो MBBS के बाद अटेंड नहीं कर सकते UPSC. MBBS इज ग्रेजुएशन इटसेल्फ, तो उसकी टेंशन मत ले कि MBBS के बाद नहीं दे सकते. यू कैन गेट द एग्जाम आफ्टर. ठीक है. अच्छा सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज क्या सर हम ऐसी So, ऐसी कैसी now we पर्सनालिटी. ठीक है सोफिया, मुझे भी निकलना है ना अभी, तो Yes, we अभी are sorry. हाँ Yeah, बिल we रहा very है. sorry. फिर अभी हाँ मैं प्लान करके और अच्छे से ना लंबा सेशन रखूंगा ताकि सब लोगों से फिर से इंटरेक्ट कर सकें. थैंक यू सो मच सर. सर वादा कीजिए. Thank you so much, sir. जल्दी आप बात करेंगे. Thank you so much, नाइस sir. टॉकिंग. ओके चलो. Thank you, sir. Assalamu Sir, alaikum. thank you so much.